Hello everyone, welcome to this session on recursion in Python. In this session, we discuss in detail what is recursion, what is the condition for implementation of recursion, how recursion works, what are its advantages and disadvantages, what is infinite recursion. Then finally we look at some programming examples. Let us first look at the definition of the function recursion. Recursion is a common mathematical and programming concept. It means that a function call itself. Function call itself means when we define a function, means inside the body of that function, same function is called again. That is called recursion, means function call itself. So basically it is a technique for solving a large problem by repeatedly applying the same procedure to reduce it to successively smaller problem. Basically this technique divides the large and complex program into the simple and smaller tasks. Okay, now conditions for implementation of recursion. First condition is there must be a terminating condition. This is called a base case. This is a compulsory case. If this case is not there, suppose, then that then that function is become infinite recursion. Okay, so this terminating condition is very important and compulsory. Now this condition is implemented inside the if condition. So in the body of the function we implement some condition and that condition will implement the terminating condition. And in third part, in the else part of that if condition, so recursive function is called, function is called itself. Okay, that is called a recursive case. So two cases are this recursion function is having two cases, that is called the base case and the recursive case. So here what happened in the recursive case, in each recursive call is not executed immediately, means when recursive call appear, this recursive call is not executed immediately. It means that recursive call is pushed onto the stack as long as terminating condition is encountered. So when terminating condition is encountered, each call is popped from the stack and executed one by one until stack is empty. तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ही रिकर्सिव कॉल आएगी तो रिकर्सिव कॉल में फंक्शन कॉल इटसेल्फ करेगा. ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि हर कॉल पे, हर रिकर्सिव कॉल में वो एक स्टैक मेंटेन करेगा. स्टैक मींस एक मेमोरी एरिया होगा, एक डाटा स्ट्रक्चर है स्टैक, बेसिकली एक मेमोरी एरिया. तो उसमें क्या होगा, हर फंक्शन कॉल जो भी कॉल आ रही है उस स्टैक में रखता जाएगा. ठीक है, कब तक रखेगा, जब तक उसको बेस केस नहीं मिलता, मींस टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं मिलती. जैसे टर्मिनेटिंग कंडीशन मिली और स्टैक में जितने भी उसने कॉल रखी हुई है वन बाई वन, उनको फिर वो वन बाई वन एग्जीक्यूट करना भी शुरू कर देगा फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक टू द स्टैक टिल द स्टैक इज एम्प्टी. ओके, सो अब इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि हर कॉल में, हर रिकर्सिव कॉल के अंदर नई मेमोरी एलोकेट हो रही है. ठीक है, किसके लिए, फॉर ईच रिकर्सिव कॉल. इसका मतलब डुप्लीकेट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स ऑफ द रिकर्सिव कॉल पुश्ड ऑन तो स्टैक में उसकी कॉल के साथ साथ उसकी डुप्लीकेट वेरिएबल्स की जो वैल्यूज है वो भी स्टैक पे रख रहा है. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली रिकर्शन डेफिनेशन. नाउ हाउ इट वर्क्स. तो जैसे मैंने पहले यहाँ डिस्कस कर लिया आपके साथ कि जिसमें रिकर्शन फंक्शन के दो पार्ट माने जाएंगे बेसिकली, एक इज टर्मिनेटिंग पार्ट और दूसरा रिकर्सिव पार्ट. ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ बता रहा है कि उसकी वर्किंग में भी ये दोनों चीज़ें हैं, टर्मिनेटिंग पार्ट एंड रिकर्सिव पार्ट. तो ये दोनों पार्ट हमें इंप्लीमेंट करने हैं. रिकर्सिव पार्ट में क्या होगा, रिकर्सिव फंक्शन की कॉल आएगी और टर्मिनेटिंग पार्ट में क्या होगा, जहाँ पे फंक्शन जो है वो एंड करेगा. ठीक है, तो एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, लेट अस से वी हैव टू इवैल्यूएट x raised to power n. So basically this problem is non-recursive, means we can solve using this iterative by using looping. So means x multiply by n time. So if I want to implement this using recursive, then we can do it like that. X raised to power n is equal to x into n minus 1 for n greater. तो ये बेसिकली क्या कंडीशन बन गई, for n greater than 1 is called recursive call, means recursive case.
मीन्स फॉर n ग्रेटर देन 1 इज कॉल्ड रिकर्सिव केस। और यहाँ पे टर्मिनेटिंग केस जो कंडीशन क्या बन गई, बेस कंडीशन क्या बन गई, जब n की वैल्यू 1 होगी तो आंसर x होगा। जब n because we know that anything raised to power 0 is 1 and anything raised to power 1 is that is n या or x whatever say base। so ये दोनों कंडीशन क्या है, n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 0 जो है वो आपकी टर्मिनेटिंग कंडीशन बन गई। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। सो एडवांटेज में क्या आ गया, रिकर्सिव फंक्शन मेक्स द कोड लुक क्लीन एंड एलिगेंट। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि कॉम्प्लेक्स टास्क लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स टास्क कैन बी ब्रोकन इनटू द सिंपल सब प्रोग्राम यूजिंग रिकर्शन। और सीक्वेंस जनरेशन इज इजियर विद रिकर्शन, बिकॉज जैसे सपोज हमें फैब्रिक सीरीज बनानी है, हमें प्राइम कोई भी सीरीज क्रिएट करनी है, ठीक है, तो उसके लिए हम रिकर्शन को प्रेफर करेंगे इंस्टेड ऑफ नेस्टेड इटरेशन, नेस्टेड लूपिंग। डिसएडवांटेज क्या है, some of the logic behind the recursion is hard to follow, means difficult to say create the logic of that recursion, and recursive calls are expensive, means inefficient, means वो inefficient है क्यों, because वो memory को space को ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहे हैं, because हर recursive call के अंदर वो उसको stack के ऊपर, जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया कि हर रिकर्सिव कॉल पे वो एक स्टैक मेमोरी अलग से मेंटेन करता है जिसमें उसकी कॉल को वो रखते जाता है एक एक कॉल करके। और रिकर्सिव फंक्शन और हार्ड टू, और इसमें कोई अगर एरर है उसको भी डिबग करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, अब हम आते हैं इनफाइनाइट रिकर्शन के ऊपर। तो जैसे मैंने उसमें फर्स्ट स्लाइड में बता दिया कि बेस केस सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें बेस केस ही नहीं होगा, इसमें बेस केस में टर्मिनेटिंग नहीं होगी, वो रिकर्शन क्या बन जाएगी, इनफाइनाइट रिकर्शन बन जाएगी। ठीक है, सो उस केस में वो कीप ऑन कॉलिंग द रिकर्सिव कॉल, उसमें कोई कंडीशन ही नहीं है टर्मिनेटिंग, तो आपका प्रोग्राम फॉर एवर रन करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट हो जाएगा, सिस्टम हैंग भी हो सकता है और जहाँ वो उसको टर्मिनेट भी कर सकता है, नॉर्मल टर्मिनेट। सो यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, टू अंडरस्टैंड लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, प्रोग्राम टू प्रिंट ए मैसेज, एक मैसेज को प्रिंट करना है फॉर एवर। ठीक है, तो इसमें मैं इसको सीधे रन टाइम बता देता हूँ आपको करके। लेट अस से डेफ मैसेज एक फंक्शन का नाम है और ये प्रिंट कर रहा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ रिकर्सिव कॉल कर दी, ये फंक्शन का बॉडी के अंदर ही रिकर्सिव कॉल आ गई। अब ये फंक्शन मेरा खत्म हो गया, इसके बाद मैंने इस फंक्शन को कॉल किया। अब इसमें कोई बेस केस है ही नहीं, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा, कीप ऑन एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, तो क्या होगा, एक टाइम पे मुझे एरर आ जाएगा। तो ये एरर की कंडीशन मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये नोट पे लिखा हुआ है, इन प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट a program with infinite recursion does not really run forever। पाइथन बेसिकली क्या कर रहा है, इसमें एक एरर मैसेज रिपोर्ट कर रहा है जब मैक्सिमम रिकर्शन डेप्थ आ जाएगी। जैसे मैक्सिमम रिकर्शन डेप्थ पे पहुंच जाएगा, पाइथन खुद ही एरर मैसेज रिपोर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट है। फर्स्ट हमारा एग्जांपल आ रहा है, पाइथन रिकर्सिव फंक्शन बनाना है हमें टू कंप्यूट सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो सम होगा वो कैलकुलेट करके फंक्शन जो है मुझे रिटर्न करके दे देगा। और इसको अगर हम समझे कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या है, 1 + 2 + 3, तो ये आपका इटरेटिव बन जाएगा। लूपिंग से हम इसको इस तरह से लूप इंप्लीमेंट करके इसका सम फाइंड आउट कर लेते थे। अब अगर हम रिकर्शन के थ्रू करना चाहते हैं तो रिकर्शन में इसका क्या डेफिनेशन बन जाएगा, सम। अब दो केस तो बनाना जरूरी है इसमें, एक तो रिकर्सिव केस, एक आपका बेस केस। तो रिकर्सिव केस क्या बन जाएगा, n + n - 1 फॉर n ग्रेटर देन, नहीं, जब n की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो इसमें ये केस इंप्लीमेंट होगा, और जब n की वैल्यू 1 होगी तो दिस वी नो व्हेन n = 1 तो सम इज n, मींस सम 1 ही होगा। तो इसमें फंक्शन भी है हमारे पास, फंक्शन कंप्यूट मैंने बनाया हुआ है, और इसमें जैसे पहला बेस केस इंप्लीमेंट किया, व्हेन n ≤ 1 रिटर्न n, अदरवाइज वो क्या रिटर्न कर रहा है, रिटर्न n + n - 1। कंप्यूट सेम फंक्शन की यहाँ रिकर्सिव कॉल आ गई। ठीक है, और जहाँ मैंने ये फंक्शन को कॉल किया, जैसे से मैं 6 के साथ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर का सम निकालना चाहता हूँ, तो मैंने n = 6 दे दिया, तो ये फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर का सम कर देगा। और यहाँ मैंने राइट साइड पे इसकी मैंने एग्जीक्यूशन भी बताई हुई है, और इसमें ये भी बताया कि वो कैसे जो है वो एग्जीक्यूट करता है। तो देखो, जैसे पहली कॉल आई, लेटर से 5 या 6 जो भी मैंने वैल्यू दी, n की वैल्यू 5 लेके चल रहा है, तो अगर 5 आई तो ये कहाँ चला जाएगा,
रिटर्न इसमें चला जाएगा, एन प्लस रिकर्सिव केस में चला जाएगा, तो जहाँ कंप्यूट एन प्लस कंप्यूट एन माइनस वन 4, फिर 4 की कॉल क्या आ जाएगी 4 प्लस कंप्यूट 3 एन माइनस वन, ठीक है, फिर 3 की कॉल क्या आ जाएगी 3 प्लस कंप्यूट 2, फिर 2 की कॉल क्या आएगी 2 प्लस कंप्यूट एन माइनस वन 1। अब जैसे ही 1 पहुंचा तो ये इसका क्या आ गया टर्मिनेटिंग पॉइंट। अब ये जितनी कॉल्स आई कंप्यूट 5 4 3 2 1, ये सारी कॉल जो है 5 प्लस 4 प्लस, ठीक है, ये सारी कॉल स्टैक के ऊपर रखते जा रहा है। उसके बाद स्टैक के ऊपर जो लास्ट में कॉल आई वो पहले एग्जीक्यूट होगी, इट मींस कंप्यूट सम पहले एग्जीक्यूट होगी, इसने रिजल्ट मुझे क्या किया 1। फिर दूसरी कॉल क्या आई 2 प्लस 1 3, फिर तीसरी रिटर्न कॉल क्या है 3 प्लस 3 6, फिर 4 प्लस 6 10, फिर 5 प्लस 10 इज 15। इस तरह से ये एग्जीक्यूट करेगा। और इसको मैं रन टाइम भी बता देता हूँ, मेरे पास इसकी कोडिंग भी पड़ी हुई है। ओपन रिकर्शन 1 करके मैंने सेम प्रोग्राम जो मैंने स्लाइड में रखा हुआ है इसकी एग्जीक्यूशन मैंने रन कर लिया। जैसे मैंने n इक्वल टू ये 1 लिखा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 8, फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर का सम आ जाएगा। सम ऑफ द फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर इज 36, ठीक है, ये बता रहा लास्ट में। तो इस तरह से हम इसको इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ द फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर इज 36, ठीक है जी, क्लियर है। ओके, अब मैं इसको सपोज करो मैं 1 देता हूँ, अब ये टर्मिनेटिंग कंडीशन है तो मेरा आंसर 1 आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट 1 नेचुरल नंबर इज 1, तो दिस इज क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, राइट ए पाइथन रिकर्सिव फंक्शन टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर। अब मुझे फैक्टोरियल निकालना है। सो फैक्टोरियल का जो है वो भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली। तो इसका रिकर्सिव डेफिनेशन क्या बन जाएगी, जब n की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी सेम, तो n इंटू एन माइनस वन, वहाँ पे सामने n प्लस एन माइनस वन था, यहाँ पे आ जाएगा n इंटू एन माइनस वन मल्टीप्लाई अप टू 1, ठीक है, जो भी नंबर है। और अब इसकी टर्मिनेटिव कंडीशन क्या बन रही, जब n की वैल्यू 0 है अगर किसी ने इनपुट कर दी है तो उस बिकॉज 0 फैक्टोरियल ऑलवेज 1 और 1 का फैक्टोरियल भी 1 ही होता है। और सेम फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये टर्मिनेटिव कंडीशन डेफ फैक्टोरियल n, if n equal to 1 return 1, else if n equal to 0 return 1, else return, this is recursive call n into factorial of n minus 1। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया, n equal to 6 के साथ इसको कॉल कर लिया। और इसकी एग्जीक्यूशन यहाँ पे मैंने बताई है, पहली कॉल 3, फिर दूसरी कॉल में n इंटू एन माइनस वन, फिर 2 इंटू एन माइनस वन। तो जैसे 1 पे पहुंचा ये टर्मिनेटिंग पॉइंट आ गया, तो 1 का रिजल्ट क्या आया 1, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6। तो इस तरह से ये एग्जीक्यूशन फंक्शन की करेगा, ठीक है। तो इसका भी मैं रन टाइम आपको प्रोग्राम मेरे पास है, मैं आपको सीधे बता देता हूँ। ओपन रिकर्शन 2, ठीक है, देखो फैक्टोरियल का ही है ये, इसको रन किया। हाँ, 6 का फैक्टोरियल इज 720, बिकॉज उसमें मैंने 6 दिया हुआ है। आप चाहो तो चेंज कर सकते हो वैल्यू को, जैसे मानो 6 की जगह मैंने 8 कर दिया, तो 8 का आंसर मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे 40320 फैक्टोरियल ऑफ 8। तो ठीक है, आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, ओके सॉरी, अब आपका आ गया फिबोनाची सीरीज, पाइथन रिकर्सिव फंक्शन टू डिस्प्ले फिबोनाची सीरीज। और फिबोनाची सीरीज का लॉजिक क्या है, सम ऑफ द प्रीवियस टू नंबर इज द नेक्स्ट नंबर, दिस इज कॉल्ड फिबोनाची सीरीज। और इसमें रिकर्सिव कॉल भी वही बन रही है, रिकर्सिव कॉल क्या आ गया n-1 प्लस n-2, सम ऑफ द प्रीवियस टू नंबर इज द नेक्स्ट नंबर। ये किसके लिए रिकर्सिव केस है, जब n की वैल्यू 2 से ज्यादा है, और जब n की वैल्यू 1 है तो आंसर 0 रिटर्न करेगा, जब n की वैल्यू 2 है तो आंसर 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये फिबोनाची सीरीज का रिजल्ट आ रहा है कंडीशन। अब देखो यहाँ पे मैंने वही चीज इंप्लीमेंट की है, टर्मिनेटिंग कंडीशन आ गया हमारे पास, बेस केस व्हेन n इक्वल टू 1 रिटर्न 0, ठीक है। व्हेन n इक्वल टू मींस पहली 2 टर्म का आंसर मुझे मिल जाएगा, पहली 2 टर्म आ गया 0 1, ठीक है, पहली 2 टर्म मुझे मिलनी डायरेक्ट मिलेंगी, तो ये पहली 2 टर्म आ गई, ठीक है। पहली 2 टर्म में व्हेन n इक्वल टू 1 0, जब n इक्वल टू 2 1,
उस अदरवाइज वो क्या करेगा, n-1 प्लस n-2 का सम करके मुझे रिटर्न कर देगा। और फिर मैंने यूजर से पूछा कितनी टर्म है, ठीक है, अगर वो टर्म लेस देन 0 है तो वो मैं बोलूंगा कि पॉजिटिव नंबर एंटर करो, ये कंडीशन लगा दी मैंने। अदरवाइज फेवरिंग सीरीज को प्रिंट कर दो। अब उस प्रिंट में मैंने लूपिंग स्टेटमेंट इंप्लीमेंट की, रेंज 1 प्लस n टर्म प्लस 1, n टर्म प्लस 1 इसलिए किया बिकॉज जो फॉर लूप है वो एक स्टेप कम चलता है, तो उसको इक्वल चलाने के लिए n टर्म तक चलाने के लिए n प्लस 1 कर दिया, n टर्म्स प्लस 1 कर दिया, और उसके लूप के अंदर मैंने उस फंक्शन को कॉल कर लिया। फेवरिंग सीरीज जो है, फेवरिंग सीरीज फंक्शन मुझे एक एक सीरीज का नंबर प्रिंट करके देता जाएगा और मैं उसको प्रिंट करता जाऊंगा, ठीक है। अब इसकी जो एग्जीक्यूशन अगर आप देखेंगे, दूसरे दो प्रीवियस जो दो प्रोग्राम थे उनकी डिफरेंट थी। इसमें बेसिकली रिकर्सिव ट्री, एक ट्री स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं 5 टर्म जो बनाने जा रहा हूँ, n = 5 मींस 5 टर्म का डिस्प्ले कर रहा हूँ। अब उस केस में क्या करेगा, 5 की डिवीजन हो गई, 5 - 1 = 4, 5 - 2 = 3, ठीक है। फिर 4 की डिवीजन हो गई, 4 - 1 = 3, 4 - 2 = 2, 3 की डिवीजन, 3 - 1 = 2 एंड 3 - 2 = 1, फिर 3 की डिवीजन 2 and 1, फिर 2 की डिवीजन 2 - 1 एंड 2 - 2 = 0। जैसे 1 0 1 0 ये सारे टर्मिनेटिंग पॉइंट आ गए मेरे पास लास्ट में, तो यहाँ ट्री आपका खत्म हो जाएगा। और इसको अगर मैं कैलकुलेट करके देखूँ, मेरा आंसर 5 आना चाहिए, 5 टर्म्स। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, तो बेसिकली आंसर क्या, जो फेवरिंग सीरीज आपकी क्या बनी, 0 1 1 2 3, ये लास्ट नोड यहाँ पे देखो 0 1 1 2, ये आपकी फेवरिंग सीरीज बन गई, ठीक है। ये अब देखो अगर इसको मैं इवैल्यूएट करूँ, देखो इधर 0 + 1 का रिजल्ट क्या आ रहा है यहाँ पे 1, और फिर 1 + 1 का रिजल्ट क्या आ गया 2, तो 3 से आंसर क्या मिल गया मुझे 2। 0 + 1 का आंसर क्या आया 1, 2 + 1 का आंसर क्या आएगा 3। इट मींस 4 पे जो मुझे आंसर आ रहा है, 4 नोड पे मुझे 3 आंसर आया। दूसरी चीज यहाँ देखें, 1 + 0 का आंसर 1, 1 + 1 का आंसर आ गया 2, सो 3 + 2 को मैं अगर ऐड करूं तो 5 आंसर आ गया, तो 5 टर्म इक्वल हो गई। तो मीन्स जहां से मुझे इस तरह से रिकर्सिव ट्री को जो क्रिएट करेगा, तो इसका मैं एग्जीक्यूशन भी आपको मैं रन टाइम बता देता हूं सीधा। ओपन रिकर्सिव ट्री, ओपन, हाँ फेवरिंग सीरीज का प्रोग्राम रन किया। हाउ मेनी टर्म्स मुझे बता रहा है, जैसे मैंने लिख दिया 8 टर्म्स, तो ये 8 टर्म्स का आंसर आ गया। और अगर मैं 5 लिखता हूँ तो सेम आंसर आएगा। अभी आपके सामने मैं 5 का लिख करके बता देता हूँ, जो मेरे पास ट्री बना हुआ है। अगर मैंने 5 लिखा, देखो 0 1 1 2 3, आप देखो यहाँ पे ट्री पे भी आंसर वही आ रहा है, ट्री के भी आंसर आप चेक कर सकते हो, 0 1 1 2 3, 0 1 1 2 3, ये देखो ट्री का जो आंसर आ रहा है मेरे पास। ओके, सो इस तरह से हम इसकी इवैल्यूएशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, नो सॉरी, उसके बाद ये लास्ट मेरा एग्जांपल है, राइट ए पाइथन रिकर्सिव फंक्शन टू इंप्लीमेंट बाइनरी सर्च इन एन एरे। ठीक है, अब बाइनरी सर्च बेसिकली जो डाटा स्ट्रक्चर का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसमें हम एलिमेंट्स को एक डाटा स्ट्रक्चर के अंदर सर्च करते हैं और वो एलिमेंट एक सीक्वेंस में होंगे। लेकिन अब बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट के लिए भी एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि अगर कोई भी एरे है या लिस्ट है वो सॉर्टेड ऑर्डर में होनी चाहिए, अरेंज्ड होनी चाहिए, मींस असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें जो प्रोसीजर है वो मैंने लिखा हुआ यहाँ पे देखो, टू सॉल्व दिस लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज बाइनरी सर्च। तो हमें इसको पाइथन में इंप्लीमेंट, रिकर्सिव फंक्शन में इंप्लीमेंट करने से पहले पता तो होना चाहिए बाइनरी सर्च होता क्या है। तो बाइनरी सर्च बेसिकली एप्लीकेबल टू सॉर्टेड एरे। To search an element, let us say data in the sorted array, we divide the array। तो बेसिकली बाइनरी सर्च में क्या होता है, ये जो array जो गिवन है यहाँ पे, array को दो जो है array में का मिडिल पोजीशन हम फाइंड करेंगे सबसे पहले। ठीक है, डिवाइड array into 2 parts। कैसे डिवाइड करेंगे, बाय फाइंडिंग द मिडिल पोजीशन ऑफ द array। सो जैसे मान लो 6 है तो इसकी मिडिल पोजीशन 3 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी मिडिल पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद मिडिल पोजीशन का जो एलिमेंट है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे और जो एलिमेंट मुझे सर्च करना है वो मिडिल पोजीशन के साथ चेक करूंगा। अगर वो एलिमेंट मिल गया तो सर्च मेरी सक्सेसफुल हो जाएगी, और अगर एलिमेंट नहीं मिला तो मैं उसके फिर देखूंगा कि वो एलिमेंट उससे बड़ा है तो उसको सेकेंड हाफ बन जाएगा, वो सर्च करने के लिए एरे का जो है सेकेंड हाफ में आ जाएगा। इसका अगर एलिमेंट वो मिडिल से छोटा है, इसका मतलब वो एलिमेंट फर्स्ट हाफ में लाई कर रहा है। इट मीन्स मैं सर्च जो करूंगा मैं फर्स्ट हाफ में करूंगा। इट मीन्स मेरी एरे जो है फर्स्ट हाफ, आधी एरे बन गई फर्स्ट हाफ,
ऐसे एलिमेंट अगर सेकंड हाफ के अंदर है तो इस तरह से ये सेम प्रोसीजर फर्स्ट हाफ के लिए भी अप्लाई करना है, ठीक है। उसको भी वैसे ही मिडिल पोजीशन निकालनी है और सर्च करना है, ठीक है। तो अगर वो एलिमेंट मिल गया तो सर्च सक्सेसफुल, अदरवाइज अनसक्सेसफुल, ठीक है। अगर तो इसमें वही देखो इम्प्लीमेंट जो किया हुआ है, ठीक है। इसमें जैसे मिडिल पोजीशन निकाली है, देखो यहाँ पे 3 निकाला है, ठीक है। तो अगर 3 मिला है तो अब एलिमेंट लाई इन द फर्स्ट हाफ, तो इसका एलिमेंट फर्स्ट हाफ के अंदर लाई कर रहा है। तो इस तरह से हम एलिमेंट को जो है बोल सकते हैं। ये एल्गोरिथम मैंने लिखा हुआ है इसका। अब इसके इसी चीज को मैंने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट किया हुआ है। देखो सॉरी कहीं आगे जा रहा है। और इसका प्रोग्राम देखा, राइट ए पाइथन रिकर्सिव फंक्शन टू इंप्लीमेंट बाइनरी सर्च। तो सेम चीज, सबसे पहले जब मैंने फंक्शन लिखा, इसमें आर्गुमेंट क्या होगा, एक एरे या लिस्ट जो भी आर्गुमेंट होगा उसका बिगिनिंग पोजीशन इंडेक्स मींस 0, फिर लास्ट इंडेक्स जिसको एंड बोलूंगा, एक्स मींस डेटा जो मुझे सर्च करना है यहाँ पे। उसके बाद पहला मैं बेस केस इंप्लीमेंट, चेक बेस केस में क्या कर रहा हूँ, अगर एंड बिगिन से ज़्यादा बड़ा है तो उस केस में क्या निकाल रहा है, वो बिगिन प्लस एंड को डिवाइड करके मिडिल पोजीशन निकाल रहा है। फिर मिडिल पोजीशन जब निकल गई तो मैं मिडिल पोजीशन पे चेक लगाऊंगा कि जो मुझे एक्स मींस जो डेटा मुझे ढूंढना है, अगर वो मिडिल पोजीशन पे है तो वो पोजीशन मुझे रिटर्न कर दे, मिडिल मींस एलिमेंट मिल गया और मिडिल पोजीशन को रिटर्न कर दे। और अगर वो नहीं है, इसका मतलब एरे का एलिमेंट डेटा से बड़ा है, इसका मतलब एलिमेंट जो है सेकंड हाफ में लाई कर रहा है। तो उस केस में चेंज क्या हो रहा है, सॉरी फर्स्ट हाफ में लाई कर रहा है। तो इसके में चेंज क्या हो रहा है, बिगिनिंग तो 0 रहा, एंड जो है वो मिडिल -1 बन जाएगा। जो एंड है वो क्या बन गया, यहाँ पे देखिए आर्गुमेंट में एंड चेंज हो गया, मिडिल -1। ऐसे ही अगर वो एरे का एलिमेंट, ठीक है, जो डेटा से छोटा है तो रिटर्न क्या कर रहा है, उसका बिगिन चेंज हो गया, मीन्स पहले बिगिन 0 था, अब बिगिन क्या बन जाएगा, मिडिल +1 और एंड वही रहा, ठीक है। मीन्स ये हो जाएगा सेकंड हाफ, ये हो जाएगा फर्स्ट हाफ। तो ये 2 हाफ में एरे जो है एग्जीक्यूट करेगी इस तरह से। और अगर ये फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये टर्मिनेशन पॉइंट है, या फर्स्ट कंडीशन फॉल्स पे टर्मिनेशन पॉइंट है, फॉल्स है तो रिटर्न क्या कर रहा है, -1 -1 ये इंडिकेट करेगा कि एलिमेंट जो है वो एरे में मिला ही नहीं, है ही नहीं, ठीक है, बिकॉज -1 इज द इनवैलिड पोजीशन ऑफ द एरे। अब देखो इसको टेस्ट करने के लिए मैंने क्या किया, एरे लिए एक, उसमें एलिमेंट एक्स की वैल्यू भी ले ली जो मुझे ढूंढनी है, 30 ढूंढना है मुझे। और उसके बाद बाय इस एरे को मैंने इंप्लीमेंट, देखो पोजीशन पहले क्या फाइंड कर रहा हूँ, एरे पहला एक एरे मींस जो लिस्ट ली मैंने, उसका 0 इज द फर्स्ट इंडेक्स। तो लास्ट इंडेक्स कैसे निकलेगा, लेंथ ऑफ द एरे -1 करके हम लास्ट एलिमेंट पोजीशन निकाल सकते हैं। एक्स मींस 30 जो मुझे ढूंढना है। उसके बाद अगर रिजल्ट -1 नहीं है, इसका मतलब एलिमेंट मिल गया है और रिजल्ट हमारा वो आ गया। और अगर वो -1 है तो लिखेंगे एरे एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे, सर्च जो है वो अनसक्सेसफुल है, ठीक है। तो इसका भी मैं एग्जीक्यूशन आपको रन टाइम बता देता हूँ। ओपन रिकर्शन 4। अब ये बाइनरी सर्च का है प्रोग्राम। अब देखो एक सेकेंड, इस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं। ये फाइंड सम का है, सॉरी बाइनरी सर्च का प्रोग्राम नहीं है इसमें। रुकिए एक मिनट, ये बाइनरी सर्च का मैंने गलत प्रोग्राम ओपन कर लिया। ओके ये बाइनरी सर्च, ओके सेम चीज़, इसको रन करें। ये देखो ये बता रहा है 30 एलिमेंट इज प्रेजेंट इन इंडेक्स 2, चेक कर लो इसको। 30 जो है 0 1 2, 30 जो है सेकंड पोजीशन पे इंप्लीमेंट है। तो इस तरह से इसकी रन टाइम भी हम चेक कर सकते हैं। तो मैंने मैन्युअली भी इसको बता दिया कैसे चलाना है, मैन्युअली भी बता दिया। बाइनरी सर्च के लिए मीन्स एरो को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, सिंपल, और उसके बाद मिडिल पोजीशन निकालनी है। अगर फिर मिडिल पोजीशन पे देखना है कि वो एलिमेंट है कि नहीं है, तो
सेकंड हाफ में देखना है कि एलिमेंट सेकंड हाफ में लाई कर रहा है, अगर वो मिडिल से बड़ा है, अगर वो मिडिल से छोटा है तो फर्स्ट हाफ में लाई कर रहा है। इस तरह से एलिमेंट को सेम प्रोसीजर को रिपीट करना है हमें वापस, जो हमने फर्स्ट प्रोसीजर के लिए किया। मीन्स फिर से हमने फर्स्ट हाफ को भी वैसे डिवाइड करना है, अगर सेकंड हाफ में तो सेकंड को भी वैसे डिवाइड करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका, सो दिस इज अवर लास्ट प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच।